Hello and a very good morning to one and all present. This side Preet Kanwal and I'm a lecturer at Mahachand Polytechnic College, Jalandhar. Today I'm here to discuss with you about the computer programming using C subject of the third semester diploma. But before starting the subject, an important information about the mission Fateh, that is related to the COVID-19 situation that we all are suffering nowadays. We should take some precautions like washing our hands, using sanitizer, mask, maintaining social distance, so that we could come out of this situation as early as possible. So now, quickly, let's move on to the subject. Today, we will discuss about the computer programming using C, and we will discuss the topics that is about the languages used while we program our computers, right? Whenever we do computer programming, then the language is necessary as we need to communicate with each other. Then there is a need of a language that should be understandable. So similarly, a language is basically a communication system that helps us to communicate with each other, right? So whenever we talk about a programming language, then a programming language is basically a set of symbols, characters, and rules that permits ourselves to communicate with the computer. So we have to follow those rules so that we will be able to communicate with the computers. And for that purpose, the computer language is basically used. So the instructions are like input, output, as we have discussed in the last lecture of the algorithms and flowchart also. So let's move on to the first language, that is the basic necessary language of the computer system, which is called the machine language. The machine language is such a language which is understandable by the computer. It uses the binary language. Binary means zeros and ones. The data that is provided to the computer is in the form of zeros and ones. We, being human beings, cannot understand what zeros and ones are, right? So, but the machine understands only this language. So we should have such a language, developed such a language that could uh, tell us, or that could make us possible, that would make us comfortable to communicate with the computer system. So if we will talk about the machine language, it is the basic language, the low level language that is only understandable by the machine, and the machine is your computer. The advantages is the efficient use of storage for the instructions and data. Then the instructions, they are immediately executed. When the instructions are given in machine language, then they are immediately executed. For example, when, as I know Hindi or Punjabi, but I don't know Japanese, if someone will talk to me in Hindi or Punjabi or English, then I will be able to understand. But if someone will communicate with me in Japanese language, I will not understand that, or I will take some time to decode that language. Similarly, the machine understands the machine language. If we will give it instructions in machine language only, then it will be able to understand it and easily it will execute it very fast. But if it will be in some other language, then it will become somewhat difficult for it to carry out. So the advantage for these advantages are for the machine itself. So instructions can be used to manipulate the individual bits. Such instructions can be used that can be used to manipulate. Manipulate means to change the individual bits. That is, either we are using 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Then in the next line, it is 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, whatever it is.
So it is the machine language. Whatever I have talked to you, I have told you that 100, this format, we cannot understand. Being human beings, we cannot understand this format. But being a machine, the computer can understand, right? So then about the disadvantages, it is a machine dependent language, right? And it take a very long time to make the program. It will take, if a user is to make the program in 0, 1 format, then it will be very lengthy process. And along with that, it will be very difficult for debug it also. Debug means to find out errors. If there will be any 1 or 0 have changed, then it will not be possible for us to recognize them, or it will take a lot of time. It will be a bit time consuming task. We will have to use this language for the coding. So computer storage locations must be addressed directly. But there is a disadvantage that computer storage locations, they should be addressed directly. They should be addressed and no other means could be used. And it requires high level of programming skills so that we can do it. It becomes very difficult for a user to learn machine language and to do coding in that language, right? So if I will show you the sample, this is a machine language sample, right? So it has written 111010000, then 101140. I even could not read it properly. How will a person be able to write in this language? So that is why, because of these some difficulties in understanding and as well as in programming in this machine language, we have shifted out to another languages, that is assembly language. It was the first introduced assembly language for the second generation computers. What it basically does is the assembler in the assembly language is basically used to translate. As I have given you an example, that if I know Hindi and some other person knows Japanese, and if we have to communicate with each other, then we need a translator in between who will convert Japanese to Hindi so that I could understand, and Hindi to Japanese, so could he or she could understand whatever who is using the language, Japanese language, right? Similarly, in the assembly language, it is understandable by the user, and the machine language is understandable by the computer. The assembler is used in between the two as a translator so that it will enable the computer to convert the assembly language instructions that are understandable by the user into the machine language. Let me tell you about this, that assembler क्या करता है कि वो कंप्यूटर को इस काबिल बनाता है कि वो जो असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस यूजर ने लिखी हैं मशीन में ऑपरेट करने के लिए, वो असेंबलर क्या करता है, उन्हें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि कंप्यूटर हमारी जो लैंग्वेज जो हमने लिखी है उसको अंडरस्टैंड कर पाता है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, उसे असेंबली लैंग्वेज समझ में नहीं आती। असेंबली लैंग्वेज हमारी फैसिलिटी के लिए है, हमारे लिए है, ताकि हम इजीली प्रोग्राम बना सकें, कर सकें, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिख सकें, राइट? तो दैट इज व्हाई जब हम असेंबलर बीच में यूज करते हैं तो वो हमें मशीन के साथ, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करवाने में हमारी हेल्प करता है। एज लाइक इट इज रिटन हियर, असेंबली कोड जो हमने लिखा, बीच में असेंबलर लगा दिया, उसने उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया। तो बेनिफिट क्या हुआ, असेंबली लैंग्वेज हमें समझ में आ रही है, मशीन लैंग्वेज मशीन को समझ में आ रही है, तो असेंबलर जो है इन दोनों में कन्वर्जन का काम करता है। ऑब्जेक्ट कोड जो है उसका वो जनरेट करता है। मशीन लैंग्वेज बाय एन असेंबलर इज रेफर्ड टू एज द ऑब्जेक्ट कोड। वो इसका ऑब्जेक्ट कोड बनाता है जो मशीन को समझ में आ जाता है। जब वो मशीन को समझ में आ जाता है तो मशीन उसके हिसाब से काम करती है जो हम उससे करवाना चाहते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ असेंबली प्रोग्राम सैंपल। ये जैसे हम लोगों ने कोई चीज मूव करवानी है तो इस तरह की इंस्ट्रक्शन होती है, मूव, MOV। ये कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो बनाई गई हैं, ये रूल्स हैं, ये इसी तरह से हमने यूज करनी है। जैसे मूव के वैसे स्पेलिंग होते हैं MOVE, बट यहाँ पे हम एज एन इंस्ट्रक्शन इसको MOV की तरह यूज कर रहे हैं।
Then sub is for subtraction, add is for addition, move for movement, and is for logical and operation जो आप लोग डिजिटल में पढ़ोगे, XOR, compare and all these instructions वो तुम लोग पढ़ोगे जब हम असेंबली लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे, we will study that. ठीक है, बट इसका मतलब ये है कि ये हमें थोड़ा सा इजी हो गया काम करना कि हम 0101 के फॉर्मेट से उठकर हम अपने कुछ सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के फॉर्मेट के अंदर आ गए. ठीक है, तो इससे हमें बेनिफिट हुआ, हमें फायदा क्या हुआ कि हमें ये चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, हमें मशीन कोड को अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है. हमने अपना असेंबली कोड लिखा, असेंबलर का काम है वो अपने आप उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, मशीन समझ जाएगी, हमारा काम हो जाएगा. हम जो चाहते हैं वो हम अपने तरीके से लिखेंगे. नेक्स्ट आ गई एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. तो इट इज इजियर है, एरर्स कम होते हैं इसमें, फास्ट रन करती है, बट इसमें हमें हार्डवेयर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. किसके डिसएडवांटेज है? दूसरी है प्रोग्राम्स आर रिटन फॉर वन टाइप ऑफ कंप्यूटर्स ओनली, क्योंकि ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है और इसमें जो राइटिंग है प्रोग्राम में बहुत ज्यादा टाइम लेती है क्योंकि लंबी इंस्ट्रक्शंस हो जाती हैं बहुत ज्यादा, राइट. तो दिस वाज अबाउट द मशीन एंड द assembly language. Next we will move to the our high level language. Okay, next we will move to our high level language. So in the high level language, it is the higher version of the machine as well as the assembly language program. It has been basically a fourth generation computer language जो हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं. ये इजी टू लर्न है, ऑलमोस्ट मशीन इंडिपेंडेंट है, मशीन लैंग्वेज का इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है, इसको इजीली हम प्रोग्राम कर सकते हैं, इसको राइट इजीली कर सकते हैं, गुड डॉक्यूमेंटेशन होती है इसमें, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड थोड़ी सी स्लो है और थोड़ी सी ये ज्यादा मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं कि इसमें हम सिंपली एक्सटेंसिव वोकैबुलरी, वर्ड्स, सिंबल्स, सेंटेंसेस, ये चीजें यूज करते हैं जो बहुत ज्यादा हमारे लिए कॉमन है, नॉर्मल है. ठीक है, देन प्रोग्राम जो हैं जिस लैंग्वेज में रिटर्न लिखे जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, उसके साथ जैसे असेंबली लैंग्वेज में हम असेंबलर यूज कर रहे थे, वैसे यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज में हम कंपाइलर यूज कर रहे हैं टू कन्वर्ट दैट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज. क्योंकि बेसिकली हम लोगों की जो मशीन है, जो हमारा पीसी है, उसने मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करना है, उसने हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टैंड करना है. ये लैंग्वेजेस सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई जाती हैं ताकि हम लोगों की, यूजर की, प्रोग्रामर की, जो इस चीज को बना रहा है उसके लिए इजी हो जाए उसको समझना, उसको समझाना, उसको कोड करना, उसको बनाना इजी हो जाए. इस वजह से ये लैंग्वेजेस जो है वो बनाई जा रही हैं. अदरवाइज अल्टीमेटली कोई भी लैंग्वेज हम लोग बनाएं उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा. कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, कोई भी बीच में ट्रांसलेटर को यूज करके हमें उसे मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मशीन को असेंबली, हाई लेवल कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, राइट. तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें भी एक सेट ऑफ रूल्स हैं हमारे पास, कुछ रूल्स हमने बनाए हुए हैं, कुछ रूल्स हाई लेवल लैंग्वेज के या कोई भी लैंग्वेज जो भी हम लिखते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, एक तरीका होता है उसे प्रोग्राम करने का, उसके कुछ लाइब्रेरीज हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं जिनको हमें ध्यान में रख के उसकी स्टेटमेंट्स जो है, उसकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हमें बनानी पड़ती हैं. तो उन स्टेटमेंट्स को, उन इंस्ट्रक्शंस को जो हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं तो उसको हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं. जो इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं उन्हें हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं. और जब हम उन स्टेटमेंट्स को, उन इंस्ट्रक्शंस को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिख देते हैं तो वो एक प्रोग्राम बन जाता है. ठीक है, तो उस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं. तो इसमें कमर्शियल, साइंटिफिक बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज में हो सकती हैं. देन आफ्टर स्पेशल पर्पस लैंग्वेजेस भी हो सकते हैं इसके अंदर. बेसिकली जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में लैंग्वेजेस यूज करते हैं जो आप लोगों के लिए है, दैट इज सी, C++, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स, ऑब्जेक्टिव सी, ये सारी चीजें जो हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं. अदरवाइज ये जनरल पर्पस लैंग्वेजेस हैं, C++, जावा, दिस all are they come under the high level language. Next topic is the compiler.
जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो कंपाइलर है वो क्या कर रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, इट इज कन्वर्टिंग दैट इनटू द मशीन लैंग्वेज, दैट इज द लो लेवल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर रहा है। तो बेसिकली कंपाइलर क्या है, इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, वो भी एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है कोड को जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हैं उन्हें लोअर लेवल लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में, इन सब चीजों में कन्वर्ट कर रहा है। तो मोस्ट कॉमन रीजन क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं इज टू क्रिएट एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। ठीक है, तो ट्रांसलेटिंग द सोर्स कोड, जो हम इसको कॉमन रीजन क्या है क्यों हम इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, क्यों हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, सोर्स कोड को कन्वर्ट कर रहे हैं, सो दैट कि एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो है वो बन सके, एक ऐसा प्रोग्राम बन सके जिसे हम एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, तो इसलिए हम, ताकि वो मशीन की भी समझ में आए और हमारी भी समझ में आए, इस वजह से हमें कंपाइलर की जरूरत है। अगर कंपाइलर नहीं होगा तो क्या होगा, मुश्किल होगी हमें कन्वर्जेंस करने के अंदर, राइट, और वो मशीन हमारी लैंग्वेज को समझ नहीं पाएगी और हम मशीन की लैंग्वेज को समझ नहीं पाएंगे। तो दैट इज, अब इसके एडवांटेजेस क्या है कंपाइलर के, सोर्स कोड इंक्लूडेड नहीं है, तो कंपाइलर कोड जो है, जो कंपाइल्ड कोड है वो बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड कोड है। ठीक है, इट टेंड्स टू प्रोड्यूस फास्टर कोड। ठीक है, तो वो फास्ट बनाता है कोड जो है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, तो इसको हम कहीं पे भी रन कर सकते हैं विदाउट द नीड ऑफ सोर्स कोड की जरूरत नहीं है, और इसको हम कहीं पे भी रन कर सकते हैं उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को। देन इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है कंपाइलर की, कि ऑब्जेक्ट कोड जो है इट नीड्स टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, तो मतलब कई बार जो ऑब्जेक्ट कोड हमने जनरेट करना है तो उसको हमें एग्जीक्यूट करने से, फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल जो बनती है उससे पहले उसको प्रोड्यूस करना पड़ सकता है, तो जिसकी वजह से एक स्लो प्रोसेस ये हो जाता है। और जो सोर्स कोड है वो 100% करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपकी फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस। तो इसमें एक और चीज आती है जिसका नाम है इंटरप्रेटर। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैंने क्या बताया तुम्हें, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, दो ट्रांसलेटर्स होते हैं हमारे पास, एक होता है कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर। जो कंपाइलर है, दैट आई हैव टोल्ड यू, वो क्या काम कर रहा है, सारे मशीन कोड को एज अ होल कंप्लीटली, पूरे के पूरे कोड को एक ही बार में वो कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, सॉरी जिसकी वजह से वो क्या करता है, जब एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट नहीं होती तब उस टाइम पे थोड़ा सा ये स्लो प्रोसेस होता है, अदरवाइज इट्स एग्जीक्यूशन इज वेरी फास्ट, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोग्राम को इकट्ठा कन्वर्ट करता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो वन बाय वन स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट एट वन टाइम, मतलब लाइन बाय लाइन वो उसको क्या करता है, कन्वर्जेंस करता है। जो एक कंपाइलर है वो ऑब्जेक्ट कोड फाइल जनरेट करता है, इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट कोड फाइल को क्रिएट नहीं करता। इसकी एग्जीक्यूशन फास्ट है। क्यों फास्ट है, क्योंकि इसने एक ही बार में, जैसे ही आपका प्रोग्राम पूरा बन गया, आपने कंपाइल किया, वो साथ में ही सारा का सारा प्रोग्राम जो है उसको कंपाइल कर देगा। बट इसकी प्रोग्राम, इसकी जो एग्जीक्यूशन है इंटरप्रेटर की, तो थोड़ी सी स्लो होती है, because every time we want to run a program it is to be interpreted again। तो जितनी बार आपने एक लाइन लिखी तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, जब आपने नेक्स्ट लाइन लिखी तो वो नेक्स्ट को एग्जीक्यूट कर देगा, नेक्स्ट लिखोगे तो नेक्स्ट को, मतलब वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता जाएगा। और जहां पे अगर कहीं पे एरर आता है, सी एट द नेक्स्ट पॉइंट, कि एरर डिटेक्शन एंड रिमूवर इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट, क्योंकि उसने पूरे प्रोग्राम को एक ही बारी में एग्जीक्यूट करना है कंपाइलर ने। ठीक है, तो अगर उसमें कहीं पे भी एरर्स आते हैं तो वो कंपाइल नहीं होगा, वो फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी, जब तक सारे के सारे एरर्स आप रिमूव नहीं कर देते तब तक आपका जो ये है, आपका जो काम है वो नहीं कंप्लीट हो पाएगा। जब तक आप सारे एरर्स को रिमूव नहीं कर देते हो तब तक आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। बट इंटरप्रेटर ऑन द अदर साइड, इट इज हैविंग अ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, ये सिंपल है, इजी है। क्यों, क्योंकि वन बाय वन इसने एग्जीक्यूट करना है। तो अगर आपने एक लाइन लिखी, उसको एग्जीक्यूट करके देखा, अगर उसमें एरर होगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि उसी लाइन में एरर है।
अदरवाइज कंपाइलर में क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे प्रोग्राम से दोबारा से गो थ्रू होना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे एरर आ रहा है, कौन सी लाइन गलत है, कौन सी लाइन खराब है। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या है, अगर आपने पूरा प्रोग्राम भी लिख दिया तब भी वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, और जहां पे आके आपकी लाइन में आ गया एरर, वहां पे आके वो वही स्टॉप कर जाएगा, उसके आगे वाला वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। तो यू विल फाइंड द एरर इमीडिएटली, उसी टाइम फटाफट से आपको फाइंड आउट कर लेना। ये देखो एक और है, इसमें थोड़ा सा सिंपल सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसकी डिफरेंस लिखा हुआ था, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दैट दिस स्लाइड। कि कंपाइलर जो है एंटायर प्रोग्राम लेता है, ये सिंगल इंस्ट्रक्शन लेता है, इसमें ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है, इसमें इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं होता है। ये कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड फास्टर, तो इसमें जो है वो स्लोअर एग्जीक्यूट होती हैं। इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट कम है, क्योंकि लाइन बाय लाइन कर रहा है तो एक टाइम पे थोड़ी सी मेमोरी चाहिए, लेकिन ये पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा कर रहा है तो इसलिए ज्यादा मेमोरी चाहिए। तो इसको बार बार कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, इसको हमें एवरी टाइम हायर लेवल लैंग्वेज को लोअर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइन बाय लाइन, तभी वो इंटरप्रेटर जो है वो वर्क कर पाएगा। देन इसमें जो एरर्स हैं, जब हमने पूरा कंपाइल कर दिया तो एग्जीक्यूट वो नहीं हुआ, तो वो सारे प्रोग्राम के एक ही बार में शो कर देगा आपको कि इतने एरर्स हैं। ठीक है, तो इसमें एरर्स जो हैं दे आर डिस्प्लेड फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन। जितनी भी आप लाइन को करोगे एग्जीक्यूट, उतनी बार वो उतनी इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको क्या करेगा, शो करेगा कि एरर्स आ रहे हैं। देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, C++ यूज कंपाइलर्स। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी है, C++ है, वो कंपाइलर्स यूज करती है। लेकिन जो न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो आजकल यूज हो रही हैं, पाइथन, रूबी एटसेट्रा, वो सारी इंटरप्रेटर्स को यूज करती हैं। मतलब सी लैंग्वेज, जो C++ लैंग्वेजेस हैं, ये सारी कंपाइलर्स के साथ वर्क करती थी, लेकिन जो पाइथन है, रूबी है, ये जो आजकल लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं, ये सारी इंटरप्रेटर्स यूज कर रही हैं। Right, so I hope this all is clear with you. Today's topic, that is about the languages and the compiler and interpreter and their difference. So this is all about today, and if you are having any kind of a doubts, then we will clear it in our live session. Thank you so much.